Hallelujah. Praise the Lord, everybody. And once again, we are gathered together as one body in Christ, as a church. And this day, we are having this wonderful time together. तुम्ही तुमच्या घरांमध्ये, मी माझ्या घरांमध्ये असून देखील सुद्धा अपन आत्म्यामध्ये एक आहोत. हालेलुया. तो आइए हम सब इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें और पवित्र आत्मा से विनती करें कि हमें वो इस वचन में अगुवाई करे, सर्विस में अगुवाई करे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Wonderful Lord, my God, today we come to you the way we are, Lord. Beloved Lord, forgive us every sin that comes in thy sight. Have mercy upon us, O Lord, my God. Wash us with the precious blood and cleanse, make us holy, be whiter than snow. And beloved Spirit of God, welcome, Lord, my God. Thou art welcome in this place. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome. Lead us is my prayer unto thee, O Lord, my God. Beloved Lord, you take charge right now. I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon our lives, upon our minds, upon our hearts, upon our bodies, O Lord, my God. Every sickness, every infirmity, every disease, O Lord, my God. But understand it comes with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, O Lord, my God. And I said to people, Lord, my God, their households, Lord, my God, that houses everything free. Get out, God, in Jesus' mighty name. And Holy Spirit of God, thou welcome, Lord, my God, thou art welcome in this place, in their homes, Lord. Wherever your people are listening to this word, Lord, thou art welcome. You take charge right now, Lord. We come to you the way we are, but we come to change. Speak to our hearts, change us. And we vow, Lord, like always, all glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place. It is our promise, and we will keep it. No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. Whatever your Holy Ghost shall do in and through these times, in and through these videos, Lord, all glory belongs to you, Lord, my God. All glory. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तो इस वचन में हमारा जो नींव का जो वचन है हम पढ़ेंगे और फिर हम आज के इस उपविषय में जाने वाले हैं. आइए हम फिलिप्पुस की पत्री का 4 अध्याय और वचन 6 पढ़ेंगे. फिलिप्पुस की पत्री का 4 अध्याय वचन 6. Philippians chapter 4 and verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Amen. I repeat once again. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. और एक्सोडस निर्गमन इसका 10वां अध्याय और वचन 1 से 2 हम पढ़ेंगे. निर्गमन इसका 10वां अध्याय और वचन 1 से 2. And the Lord said unto Moses, go in unto Pharaoh. Exodus chapter 10 and verses 1 to verse 2. And the Lord said unto Moses, go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him, and that thou mayest tell in the ears of thy son and thy son's son what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done amongst them, that ye may know that I am the Lord. Amen. Let us all pray. Beloved Holy Spirit of God, thank you for this time that you've given to us. We come to the way we are, but we come to change. We come to become more like you. Speak to our hearts, wonderful Lord, my God. Touch us, change us, transform us. Help us, Lord, my God, to face our Goliaths the way you want us to face them, Lord. Help us, Lord, my God, to overcome our challenges, Lord, our situations, Lord, that may seem like mountains, Lord. But, beloved Lord, my God, we believe and we trust. When we get Rhema for our lives will not be the same again. We come to you to receive Rhema from you, to become more like you. In Jesus' name I pray and ask. Amen. Hallelujah. एक दूसरे को कह सकते हैं हम जोर से, जो डर गया समझो मर गया. Amen. फिर से एक बार, जो डर गया समझो मर गया. Amen. और आज का उपविषय जो है ये बहुत ही रोमांचक ऐसा उपविषय है. आइए हम एक दूसरे को कह सकते हैं, अगर आप अकेले हो तो आप अकेले जोर से कह सकते हैं, बिफोर फेसिंग गॉलियथ, गलियात का सामना करने से पहले. एक दूसरे से कहिए, गलियात का सामना करने से पहले, बिफोर फेसिंग गॉलियथ. जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु मसीह उसकी कृपा के द्वारा हमें अनेक परेशानियों से, अनेक समस्याओं से
छुड़ाता है, निकालता है। बहुत सारे पर्वत हम हमारे जिंदगी के हम हमारे जिंदगी में उसका सामना हम पर्वतों का हम करते हैं, और जब हम उस सामना करते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। होता यह है कि जब हम दुआ में जाते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और यीशु मसीह के नाम में हम उन सारे पर्वतों को हम नेस्तनाबूद कर देते हैं, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो पूरी तरीके से एक सपाट भूमि बन जाता है। और वो जब भूमि एक सपाट भूमि बन जाता है तो हम उन पर्वतों पर विजय करके हम बाहर निकल आते हैं। कितने लोगों ने इसका अनुभव लिया है वो आमेन कहेंगे? आमेन, आमेन। तो बहुत सारे चमत्कारों को हम अनुभव लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कोई बीमार होता है तो उनको चंगाई मिलती है, कोई को किन लोगों को फैमिली में प्रॉब्लम होता है तो उनको फैमिली का चमत्कार मिल जाता है, किन लोगों को उनके ज़िंदगी में समस्या होती है, फाइनेंस की आर्थिक समस्या होती है, उसका भी वो चमत्कार पा लेते हैं, और परमेश्वर उन हमें इन सारे अनुभवों से लेके आता है। मेरी गवाही ऐसी है कि जब मैं परमेश्वर में आया तब मेरी ज़िंदगी बहुत ही खराब थी, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जानने लगा, वो जानने के लिए मुझे एक अनुभव से गुजरना पड़ा। परमेश्वर यीशु मसीह में आने से पहले मैं बीमार गिर गया, और उसके बाद में मुझे दिख नहीं रहा था ठीक से, मुझे सुन नहीं रहा था मैं ठीक से, और मुझे बोलने भी नहीं आ रहा था ठीक से, और मुझे हाफ पैरालिसिस हो गया था। और ऐसे कंडीशन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे पास जब आया, और उस सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद में मुझे चंगाई मिली, और वो चंगाई तुरंत नहीं मिली, उसको एक साल लग गया मुझे पूरी तरीके से चंगा होने के लिए। आज आप जब मुझे देखते हो तो मेरे अंदर कोई भी बीमारी आपको नजर नहीं आती, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है वो काम पूरा कर देता है। हालेलुया। तो जब इस अनुभव से मैं गुजर रहा था, इन अनुभवों से गुजर रहा था, उसके बाद में मेरे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा, लेकिन एक बात मुझे हमेशा उत्तेजन देते रही, और वो बात ये थी कि अगर परमेश्वर तुझे इतने भयानक बीमारी से निकाल सकता है। मैं 4 दिन में मरने वाला था, संतों में 4 दिन में मरने वाला था, लेकिन मुझे ये बात हमेशा इस बात का इल्म रहता है, इस बात की हमेशा एक समझ रहती है कि अगर परमेश्वर तुझे इतनी भयानक बीमारी से चंगा कर सकता है तो ये पर्वत क्या है? कुछ भी नहीं है। आमेन। या तो आज मैं हम जब हमारे इन गलियातों का सामना करने जाते हैं, मैंने बहुत विश्वासियों को देखा है, वो हमेशा डर जाते हैं, उनके अंदर इतना डर घुस जाता है, और वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या होगा, कैसे होगा, मैं मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा, मेरे ये गलियात मुझे मार डालेगा, मैं खल्लास हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म है, मैं आगे कैसे जाऊं, क्या करूं। इन ढेर सारे सवाल उनके मन में घूमते रहते हैं, और डर उनके दिल में बैठ जाता है कि आगे कैसे होगा, आगे क्या होगा। जब कभी भी हम हमारे जिंदगी में कोई भी गलियात का सामना करने जाते हैं, उसके पहले एक समय आता है, और वो समय ये आता है कि हमें कुछ तभी करना है। परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि हम कुछ तो करें, और वो क्या करें हम देखेंगे। पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय और वचन 32 से 37 तक हम पढ़ेंगे। 1 Samuel 17 and verses 32 to verse 37. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. What a resume announced by the king of Israel. Look at it, people of God. सोचिए, इज़राइल का राजा गलियात का रेज्यूमे बता रहा है। कितनी मजेदार बात है ना ये, कि इज़राइल एक जिंदा खुदा के सैन्य का राजा, एक जिंदा खुदा के आर्मी का राजा, वो सामने वाले शत्रु का रेज्यूमे बता रहा है, और वो क्या कह रहा है? यू कैनॉट फाइट हिम, फॉर दाउ आर्ट बट अ यूथ, एंड
he a man of war from his youth. ऐसा ही होता है जब हमारा ध्यान ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा शत्रु पर, दुश्मन पर, शैतान पर, हमारी समस्याओं पर लगा रहता है। यही होता है। कैसे पहचाने कि मेरा ध्यान परमेश्वर पे है? देखो, बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं, बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है, मैं जानता हूं ना परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकालेगा, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे मेरा प्रोवाइडर है, मैं जानता हूं मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ये बोलने के लिए, लेकिन जब समस्या हमारे सामने आनी ही वाली है, अभी तक आई नहीं है लेकिन आनी ही वाली है, हम किसका गुणगान ज्यादा गाते हैं, इससे दिखता है हमारा ध्यान किस पे है। शाऊल दाऊद को बता रहा है, गलियात का ट्रैक रिकॉर्ड कमाल हो गया। तू राजा किसका है, गलियात का या इजराइल के आर्मी का? किसका राजा है? पहले वो डिसाइड कर। यही हम हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नहीं मेरा परमेश्वर महान है, नहीं मेरा परमेश्वर मेरे सारी जरूरतों को पूरा करता है, यस सब कुछ है, मेरा परमेश्वर चंगाई देने वाला है। लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम आने से पहले, नहीं ऐसा होता है, ये बीमारी से ऐसा होता है, इसका वैसा होता है, कैसा आएगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा, अरे मेरे को पैसे की जरूरत है, कैसा मेरी जरूरत को पूरा कैसे किया जाएगा, अरे क्या करूँ, मेरा अगर ऐसा हो गया तो खल्लास हो जाएगा मैं, अरे मैं मेरी वाट लग जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैसे करूँगा मैं, अरे मेरा तो EMI आने वाला है, मेरे को ये होने वाला है, फलाना होने वाला है, इनका होने वाला है, क्या करूँ, कैसा होगा, अरे भाई कोरोना की वजह से मेरी तनख्वाह भी आई नहीं है, मैं क्या करूं। अरे तेरा ध्यान, जिस चीज पर हमारा ध्यान होता है हम उस चीज के बारे में ही बात करते हैं। शाऊल का ध्यान गलियात पे ज्यादा था, ना कि जिंदा खुदा पे। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, हम बताते तो है, हमारे दरवाजे पे स्टिकर तो रखता है, हमारे गले में क्रॉस भी रहता है, हमारे घरों में बाइबल रहता है, हम पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन जब हम गलियात का सामने जाने ही वाले होते हैं, हम गलियात का पूरा रेज्यूमे बता देते हैं, पूरा बायोडाटा बता देते हैं कि वो क्या क्या है, लेकिन हम खुदा का बायोडाटा नहीं बताते। हमारे मुंह से खुदा के बारे में रेज्यूमे बाहर नहीं आता है कि देखो मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया था। अगर उसने वो किया था तो वो आज भी करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। ये ऐसी बातें हमारे मुंह से नहीं आती है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। आइए हम आगे बढ़ते। अभी देखो दाऊद क्या कहता है। And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Hallelujah. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them. See, he hath defiled the armies of the living God. Hallelujah. क्या गारंटी। चलो, इसको कहते हैं परमेश्वर के महान कामों पर ध्यान लगाना। हमारा ध्यान, कितने लोग मर गए कोरोना से, कितने लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही है, कितने अकाउंट आधी तनख्वाह से भरे हैं, कितने लोगों का आधी तनख्वाह आई है, क्या करू, माझा पगार कधी येणार, माझं कसं होणार, माझ्या लेकरांचं कसं होणार, मला पुरवठा कसा होणार, कितीतरी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अरे मी काय करू, मैं क्या करूं। हमारा ध्यान हम ये भूल गए हैं कि जब हमें नौकरी नहीं थी तब भी हमारे मुंह में निवाला डालने वाला यीशु मसीह अभी भी वही यीशु मसीह है, और वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन जोर से बोल सकता है क्या वहां से? आमीन। This is what your Jesus can do. People of God, we have forgotten what he has done in the past. हम वो भूल गए हैं, क्योंकि भूल अच्छी बात है, भूलना, और
और बुरी बातें याद रखना ये इंसान की फितरत है। इंसान ऐसा ही है। 10,000 अच्छी भलाई की चीजें करो, इंसान को याद नहीं रहता है, लेकिन एक बुरी चीज हो जाए इंसान को मरते दम तक वही याद रहता है। ऐसा इंसान है। और दाऊद में और हम में यही फर्क है। दाऊद में और हम में यही फर्क है। दाऊद ऐसा था कि उसका ध्यान, जब वो गलियात के सामने जाने वाला है, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम उसके लिए किए वो याद रख रहा है। उसको वो याद आ रहा है कि अगर परमेश्वर ने मुझे एक शेर के मुंह से और एक भालू के मुंह से अगर बचाया है, तो मुझे गारंटी है कि वो मुझे इधर भी वो 100% बचाएगा और मेरे द्वारा महान काम करेगा। इतनी गारंटी दाऊद को थी। Amen. आगे हम पढ़ते हैं दाऊद 37 verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. Hallelujah. Come on. सोचिए इस बात को। क्या ये गारंटी हम लोग देते हैं क्या? ये गारंटी हमको है क्या? अरे मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तो ये कोरोना क्या मेरा बिगाड़ेगा? अब जब तक मेरे जाने का टाइम नहीं आता है, मुझे कोई भी शस्त्र मेरे खिलाफ नहीं चल सकता है। फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो या फिर एक कोरोना हो। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी मेरे सिर पे गिरता है ना, मेरे आजू बाजू में सब लोग मरेंगे सिवाय मुझे छोड़। ये गारंटी हमको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के महान कामों को देखा है। बाइबल कहता है कि निर्गमन इसका 10वां अध्याय वचन 1 और 2 में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि तू, वचन 2 में लिखा है विशेष करके, एंड thou mayest tell in the ears of thy son and thy son's son what things I have done in Egypt, and my signs which I have done amongst them, that ye may know that I am the Lord. तू जा और जब तू तेरे पुत्र और तेरे पुत्रों के कान में बता कि तुम्हारे परमेश्वर ने कौन से बड़े बड़े कामों को किया था मिस्र में। हम हमारे बच्चों के कानों में क्या बोलते हैं? हम हमारे खुद के कानों में क्या बोलते हैं? ये मर गया, वो मर गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, न्यूज पे न्यूज, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इनका हो गया, अरे बाप रे, इनके जिंदगी में ऐसा हो गया, बाजू वाले के घर में, अरे पीछे के गली में कोरोना आ गया, पीछे के उसको ऐसा हो गया, अरे उनको तनख्वाह नहीं मिली, अरे वो खाना खाने को मोहताज हो गए, अभी वो जो सरकारी शेल्टर है उधर जाके वो खाना मांग रहे हैं, अरे हमको ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? तुमको ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एदन के वाटिका में हो, तुम यीशु मसीह के लहू के अंदर हो, तुम्हें ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें समझनी जरूरी है, तुम्हारे खून में जानी जरूरी है, और तुम्हारे बच्चों के खून में डालना तुम्हारा काम है। बाळा, तुला आपल्याला अशी वेळ कधी येणार नाही, कारण या घरचा मस्तक प्रभू येशू ख्रिस्त आहे हे लक्षात ठेवणं आणि आपल्या लेकरांना ह्याच्या कानात घुसवणं हे आमचं काम आहे। आपल्या आई वडिलांचं आपलं काम आहे। आम्ही जे आई वडील आहोत ते विचार करा, अपन अपने लेकरांसमोर काय बोलतो, क्या बोलते हैं हम हमारे बच्चों के सामने, किस तरीके की बातें हम करते हैं। ध्यान में रखिए, आप अगर सुनने रहेंगे फिर से, लेकिन आपके बच्चे आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनते हैं। जरा आप खुद को सीरियसली ले लो, क्योंकि जिस बारे में आप ज्यादा बोलते हो उस बारे में उससे मालूम पड़ता है आपका ध्यान किस पे है। Where are you focusing upon? गलियात का रेज्यूमे बना रहे हैं या परमेश्वर का रेज्यूमे याद है? अरे बताना चाहिए आपने। अरे जो परमेश्वर 2 मछली और 5 रोटी को बढ़ा के 5,000 से ज्यादा लोगों को खिला सकता है, वो तो हमारे घर में सबसे बेस्ट चीजें लगा सकता है। ये मेरा तो विश्वास है, गारंटी का विश्वास है। मुझे देखो, मेरा ये विश्वास है कि पेट भरकर खाना खिलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही वो पैसा लेके आता है। आमेन, आमेन।
आगे मैं बढ़ता हूं। निर्गमन का 13वां अध्याय और वचन 3 और 8। निर्गमन 13, 3 और 8। Exodus 13 verses 3 and verse 8. And Moses said unto the people, remember this day in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage, by the strength of the hand of the Lord brought you out of this place. There shall no leavened bread be eaten, and thou shalt shew thy son in that day, saying, this is done because of that which the Lord did unto me when I came forth out of Egypt. आपको आपके बच्चों को बताना है कि हमारे जिंदगी में ये क्यों हो गया, ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। हर एक चमत्कार जो हमारे आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया था, वो बार बार आपके बच्चों को बताओ। आप खुद ये भी याद रखो, बताते रहो, खुद को भी बताते रहो कि परमेश्वर ने अगर हमें 2005 में हमें ऐसा किया था, 2007 में हमने परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए चमत्कार किया था, 2000 में ये चमत्कार किया था, 1999 में चमत्कार किया था। अगर जो भी परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी किया हो वो बताते रहो, उससे आपका विश्वास बढ़ता है और नए गलियात का सामना करने के लिए आपको और ताकत मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। बताते रहो। ये बात को हमें समझना जरूरी है कि हमें ये बताना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है, और इन बातों को भूलना नहीं है। ते म्हणतात ना असं, पुढचं पाठ मागचं सपाट असं नाही। पुढचं पाठ असू द्या आणि मागचं पण नीट पाठ असू द्या। आमेन। कारण का जो येणारा जो गल्ल्यात आहे, तुम्हाला मागील प्रभूने केलेल्या चमत्कारांची आठवण तुमच्या डोक्यात ठेवणं गरजेचं आहे की जे जर का परमेश्वराने ते केलेलं आहे, जर का दानिएलला सिंहाच्या गुहेतून बाहेर काढलेलं आहे, जर का शद्रक मेशक अबेदनगोला जर का अग्नीतून बाहेर काढलेलं आहे, तर मला पण थोडी ताकद मिळाली प्रभू येशूच्या नावामध्ये ह्या गल्ल्यातीला सामना द्यायला। Amen. I can face this Goliath in the name of Jesus. Hallelujah. If they can do it, if he was with them, he is with me also, because my God is a never changing God. मेरा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। ये विश्वास से हमें इस गलियात का सामना करना है, ये विश्वास के द्वारा। अगर हमारे अंदर ये विश्वास नहीं है तो हमें आज से ये विश्वास अंदर पैदा करना है। और वो कैसा पैदा होगा? हमें इन बातों को हमारे मुंह से दोहराना है, दोहराते रहना है। मैं बार बार हमेशा, मेरे जिंदगी में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। कि जब मैं बीमार था, मरने वाला था, डॉक्टर ने सिर्फ 4 दिन दिए थे। मुझे अभी भी वो समय याद है जब हॉस्पिटल, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में मैं मौत की सांसें गिन रहा था, जीवन की सांसें गिन रहा था, और मौत कब आएगी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा ये नहीं जानता, मेरा बेटा उस वक्त था भी नहीं और मेरी बीवी भी नहीं थी। लेकिन उस समय जो मेरे साथ गुजरा है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। और इसलिए शायद परमेश्वर में मेरा चलना इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जिस घटना से मैं गुजरा हूँ, वो घटना का जो इम्प्रिंट है, छाप है, मेरे जी के अंदर इतना घुस गया है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। कि बहुत बार मैंने बहुत सारे अनगिनत गलियातों का सामना किया है, अनगिनत गलियातों का, और उन सारे गलियातों के सामने मैं सीना तान के खड़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा जो अनुभव में से परमेश्वर ने मुझे लाया है। मैं हमेशा खुद को ये कहता हूं कि अगर तू वो क्लियर कर सका तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर के संतों, चलो आज से हम हमारे बच्चों के सामने, हमारे दिल में, हमारे मुंह से गलियात का बायोडाटा नहीं, लेकिन परमेश्वर का बायोडाटा बोलेंगे जो परमेश्वर ने किया है। ये बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ये सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ये पढ़ो ताकि आप और हम विश्वास में बढ़े और जो आने वाला गलियात है उसका सामना ऐसे पावर से करें कि 2 सेकंड में गलियात हमारे सामने खल्लास है। आमीन,
Amen. Hallelujah. Let us all pray, everybody. I am dua kare. Thank you, Lord my God, for giving us this time. Thank you for speaking to our hearts. Beloved Lord my God, today we come to you the way we are, but we come to change. And thank you for speaking to our hearts, Lord. Thank you for showing us where we are lacking, where we are going wrong. And beloved Lord my God, this moment I uphold the throne of grace and mercy. Every single person that has heard today's word, Lord my God, I uphold them all before the throne of grace and mercy right now in Jesus' mighty name. And beloved Lord my God, every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, upon their bodies, upon their minds, upon their hearts, Lord my God, I bind and destroy and consume with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord my God. And I set the people free, get out, God, in Jesus' mighty name. And I set the people free in Jesus' name now, right now. Every sickness, every infirmity, every disease, every spirit of fear, of corona, every spirit of fear of insufficiency, every spirit of fear that there be no provision made, be gone, get out in Jesus' mighty name. And I set people free in Jesus' name now. Holy Spirit of God, just breathe afresh, upon the saints in the houses, wherever they are right now, Lord my God. Just touch them, Lord, and make them whole. Just touch them, Lord my God. Let this new faith, let the seed of this faith be implanted in them, Lord. I ask in Jesus' name. Help them, Lord my God, to give their minds to understand this word, and in every part of darkness that's trying to take away the seed that has been sown by the power of the Holy Ghost. I'm just trying to cut it with the power of the Holy Ghost in Jesus' mighty name. And I set the seed free. Get out and come out in Jesus' mighty name. The Holy Spirit of God, you take charge right now. Just hover upon your people, who are in your people, Lord my God. Just be with them, Lord my God. And I bring their spirit, soul, body, mind, heart, and life. Their families are going and coming, the job, their businesses, Lord my God, their vehicles, Lord my God, everything, their animals, their household, their houses, the areas which they live in, all under the covering of the Lord's blood, the Lord's all in the power of the Holy Ghost. You be with the people, Lord my God, right now. Beloved Lord, I bless your people with the blessings mentioned in your word for people right now. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And let the name of the Lord be put upon thee and upon thy children. And the Lord bless thee and thy children. Beloved Lord, just touch your people. Just breathe afresh. Touch. Fill them, Lord my God. And help the people to bring forth fruit hundredfold, according to today's word. In Jesus' name I pray and ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And God bless you. और इस वचन के अनुसार 100% फल लेके आइए और विश्वास में डटे रहिए. गलियात का रिज्यूमे नहीं बताना है, परमेश्वर का रिज्यूमे बताना है. आमेन. God bless you. Praise the Lord.